Hello students, welcome to Sairam classes English 1 to 3. Today again I'm here with chapter 6, The 100 Dresses part 2 of class 10th first flight book. In first video we had discussed the 100 dresses part 1. If any of you have not seen the first one, then please watch the first part of the video given in the description link. Otherwise, you are not able to understand this chapter. So, in first video or in first part of the 100 dresses one, we have read about a girl, Wanda Petronsky, who has come from Poland and settled in America. She was a new to that school and different name from other Americans people. So how she has to face a lot of difficulties and how the students tortured her a lot in the school, and by that torture she has left the school. And now what we will see now we will see what is happened in the story next. The 100 Dresses Part 2, written by Eleanor Estes. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. और जब क्लास में सब जो स्टूडेंट्स थे दे वर मेकिंग अ सर्कल इन द क्लास एंड द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस brought a note for Mrs. Mason. In that note, something important was written there. When she studied the note, she clapped her hands and said, "The attention class, everyone back to their seat." When the shuffling of feet has stopped and the room was still and quiet. When everybody has taken their seat and the room was still and quiet. जब सब लोग बैठ गए and वहाँ पर एक तरह से शांति हो गई, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." Miss Mason stood there for a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Vanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. And जैसे ही मिसेस मेजन ने वो नोट को देखा, मिस मेजन ने, तो रूम में जो है बहुत साइलेंस हो गया, टेंस हो गया सब रूम में. और जो टीचर थी, शी एडजस्टेड हर ग्लास, उसने अपने चश्मों को ठीक ठाक किया और वो सब इसने जानबूझ के किया. इट मीन्स हर बॉडी लैंग्वेज, हर मैनर आर इंडिकेटिंग दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट वॉज रिटन इन दैट नोट. और अब क्या लिखा था? डियर टीचर, my Wanda will not come to school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler Pollock. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronsky. तो उस नोट में क्या लिखा था? In that note, her father has written that his daughter and his son will not come to that school because there the children tease them a lot, and that's why they had moved to a big city. And now nobody will make fun of their name because these type of more people will be in that city and they will not feel weird or strange in that big city. Jen Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glass,
blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very slow. I'm sure that none of the boys and girls in room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. Now, the teacher has read the letter, and by reading that letter, she was not happy. She took off her glass and blew on them. उसने मतलब साफ किया glasses को, wipe them with her handkerchief, with her hanky. Then she put them again and looked at the class. वापस उन्होंने पहना और क्लास को उन्होंने देखा. When she spoke, और जब उन्होंने क्लास से बात की तो her voice was very low. I'm sure, and she was sure that nobody in the room number 13 has deliberately done that. किसी ने भी ये जानबूझकर नहीं किया था. It was it was Miss Mason thinking that nobody has done this deliberately or knowingly, because they cannot hurt anyone due to his or her long name or unfamiliar name. I prefer to think that what was said in thoughtfulness, कि जो कुछ भी कहा गया शायद वो बिना सोचे समझे कहा गया. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. Then उन्होंने क्लास से बोला कि I know that all of you are feeling the same as Miss Mason was feeling, and according to her this was very unfortunate thing, this was very unlucky thing what was happened in room number 13, and she was saying that you all have to think about it again, कि आपको दोबारा सोचना होगा इन सब चीज़ों के बारे में. The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. And जो first period था, it was a study period. Maddie tried her lot, or she tried hard to concentrate on study, but due to that thought of Wanda, she was not able to get concentrate on her studies. She had a very sick feeling in bottom of her stomach. उसके मन में कुछ गड़बड़ाहट सी हो रही थी पेट में, जैसे जहाँ कोई गलत चीज़ें होती हैं तो उसके पेट में हलचल हो रही थी. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. और कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ें याद आ रही थी कि वो उसे अच्छा नहीं लगता था. When Peggy asked Wanda how many dresses you are having in your closet, तो she doesn't like that question. But she had said nothing, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा. She had stood by silently. वो आराम से चुपचाप खड़ी रहती थी. And that was just as bad as what Peggy had done. और ये सब चीज़ें उतनी ही बुरी थी जितना पैगी ने किया था. She was a coward. वो एक coward थी. At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. और हालांकि जो है मेनी टाइम्स जो है पैगी, शी इज़ नॉट कंसिडर्ड एनी टाइम दैट शी हैज़ डन एनीथिंग रॉन्ग, बट पैगी नोज दैट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी could put herself in Wanda's shoes, और she could put herself in Wanda's shoes, it means she could be in that same place. सेम शूज़ मतलब उसी जगह. यहाँ पे शूज़ का मतलब शूज़ से नहीं है, यहाँ पे शूज़ का मतलब जो है put her in shoes means कि she could be on same situation in place of Wanda. Maddie should be at any time. उसको लगता था कि उसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ, because she also belonged to a poor family. Goodness, was not there anything she could do? Oh my goodness, was not there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling. और जो अच्छी चीज़ थी, she could do only that she could talk to Wanda that she doesn't have that
intention to hurt her. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. उसने पैगी की तरफ देखा, बट पैगी वॉज नॉट लुकिंग अप. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और ऐसा लगा था कि शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन इन हर स्टडीज़. वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, Maddie had to do something. Now, Maddie was feeling that I don't have any thing about it, that Peggy should think about it or not, but आई हैव टू डू समथिंग. उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि पैगी कुछ करे या ना करे, बट आई हैव टू टेक सम स्टेप एंड आई हैव टू टॉक टू वांडा. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. उसको लगा कि शायद अभी वो ना गए हों. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, और शायद पैगी भी उसके साथ बॉगिन्स हाइट पर वहाँ चले. They would tell Wanda that she had won the contest, that they thought she was smart, and the 100 dresses were beautiful. And वो बता सकते थे वांडा को that she had won the contest, and then they thought that she was very smart. वो उसे बता सकते थे कि हम तेरे बारे में क्या सोचते हैं. हम सोचते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और जो 100 ड्रेसेस हैं you had drawn, they all were very beautiful. Now there are some question here. ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्या है. व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से. मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में क्या लिखा था. इज मिस मेजन एंग्री विद द क्लास, और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्या मिस मेजन जो है एंग्री थी क्लास से, या फिर वो खुश नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं अपसेट थी. हाउ Question number 3. How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's faith? What does Maddie want to do? Question number 4 क्या आपका, Maddie क्या करना चाहती थी. So these are the question you have to write down in yourself, and you can write the answer of these question in comment section also. Okay. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." और when the school was over in the afternoon, then Peggy said, with pretended casualness, मतलब उसने थोड़ा सा बहाना बना करके कि as she was not affected with any letter of Wanda Petronsky's father, then she said to Maddie that just see कि दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वो चली गई है या नहीं है, चलो देखते हैं एक बार. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लॉड. तो कहीं ना कहीं द पैगी हैज़ ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग एज मैडी वॉज हैविंग इन हर माइंड. पैग वॉज रियली ऑल राइट. हाँ, सब कुछ सही था. द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिन्स हाइट, द पार्ट ऑफ अ टाउन एंड that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. और दोनों लड़कियां जो जल्दी जल्दी वो बिल्डिंग से बाहर आई, स्कूल बिल्डिंग से, और they went forward to Boggins Height, जहाँ पर उनका घर था. and Boggins Height is a part of a town that was such a bit forbidding air, मतलब थोड़ा सा बहुत ही फॉरबिडिंग एयर थी वहाँ पर. नवंबर आफ्टरनून का टाइम था ये, और ड्रिजली मतलब हल्की हल्की बारिश थी, तो उससे जो मिट्टी थी इट वॉज वेट एंड डिस्मेल, वेट एंड सेड, एंड इट वॉज मीन्स यू कैन से दैट दे वॉज दैट दिस डैम्प एंड डिस्मेल शोज an expression of a state of hopelessness. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look, how can she draw? Well, फिर पैगी ने ग्रफली बोला, मतलब बिना ऐसी मतलब थोड़ा सा उसको बुरा लग रहा था, तो उसने बोला कि आई डेंट कॉल हर एनी टाइम फॉरेन. मैंने उसको कभी फॉरेनर नहीं कहा. एंड आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू हर्ट हर फीलिंग्स. एंड आई डेंट थिंक अबाउट इट दैट शी वुड टेक इट माइंडली, कि कभी वो बुरा मान जाएगी इस चीज़ का. एंड आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे तो लगा था कि वो बिल्कुल
डम है, कुछ जानती नहीं है. एंड हाउ ब्यूटिफुली शी कैन ड्रॉ, और वो कितना ब्यूटिफुली उसने ड्रॉ किया. मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा. ऑल शी होप वॉज दैट दे कुड फाइंड वांडा. सिर्फ उन्हें क्या उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें वांडा मिल जाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल thought she was, and pleased not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब मैडी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे क्या दिमाग में चल रहा था कि किसी भी तरह से वांडा जो है वो अभी नहीं गई हो, बस दे वुड फाइंड हर, एंड आफ्टर दैट दे वुड टेल हर दैट द होल स्कूल वॉज अप्रिशिएटिंग हर कोई इसका अप्रिशिएशन कर रहा था. एंड कोई भी अब उसका फ़न नहीं बनाएगा. एंड जो मैगी है और जो पैगी है और जो मैडी है, नाउ दे वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस टू हर, कि हम उसके लिए लड़ेंगे जो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. अब उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो डार्क होने से पहले, मतलब मीन्स नाइट होने से पहले वो वहाँ पर पहुँच जाए हिल तक. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लीव, सेड मैडी. और तभी उन्हें लगा कि आई थिंक, मैडी ने बोला कि शायद ये वही जगह जहाँ पर पेट्रॉन्स्की रहते हैं, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस. wisp of old grass stuck up here, and they were there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. और तभी उन्हें एक वाइट हाउस दिखा जो उन्हें लग रहा था कि शायद ये उन पेट्रॉन्स्की का होगा. और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी घास थी पुरानी, और रास्ते में 2 किटन भी मिले उनको, पतले दुबले से बिल्कुल. और जो हाउस था और उसका जो यार्ड था वो शैबी था बट क्लीन था, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं था बट वो क्लीन था, साफ़ सुथरा था. और ये उसे वांडा की उस ड्रेस से याद दिला रहा था जो वांडा की फेडेड ब्लू ड्रेस थी. फेडेड थी बट इट वॉज क्लीन, लेकिन वो हमेशा क्लीन होती थी, गंदी नहीं होती थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. इट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं थी, साउंड नहीं था घर के आसपास. पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर. पैगी ने पूरी जो है डोर पे खटखटाया, आवाज़ की, नॉक किया, बट देयर वाज नो आंसर फ्रॉम देयर. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड. वो पीछे की तरफ भी गए, एंड नॉक देयर ऑल्सो. स्टिल देयर वाज नो आंसर, और वहाँ पर भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्की वर गॉन. हाउ कुड दे एवर मेक amends? अब इस चीज़ में कोई डाउट नहीं था कि पेट्रॉन्स्की हैड मूव्ड फ्रॉम दैट सिटी. दे had now moved to a big city. But how could they make amendments? How can they correct their mistake? How can they make amendment there? They turned slowly and made their way back down to the hill. वो वापस आ गए. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. फिर वो अपने आप को जो है एक तरह से कंसोल करने के लिए पैगी कहती है कि चलो ठीक है, वो चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं. और बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग टू हर, और जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो मे बी एट दैट टाइम शी वाज गेटिंग दैट आइडियाज फॉर ड्राइंग. अगर मैंने ऐसा नहीं पूछा होता तो मे बी शी वाज नॉट एबल टू विन द कॉन्टेस्ट. बट इस तरह से अपने आप को समझाते हैं वो. मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर एड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. और कहीं ना कहीं अब उसे उस रात को मैडी को नींद नहीं आई. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. She was continuously thinking about Wanda, her faded blue dress, and the little house where they lived. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made. And she was also thinking about the dresses what she has made in the drawing competition, all lined up in the classroom. और सारी की सारी लाइन से क्लास में लगी हुई थी. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought.
तब मैडी अचानक से क्या हो उठ के बैठ गई एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, उसने अपना फॉरहेड दबाया जैसे शी वॉज फीलिंग हेडेक एंड रियली थॉट, बहुत सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसने इतना ज़्यादा सोचा किसी मैटर के बारे में। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और आफ्टर ए लॉन्ग, बहुत देर के बाद उसे एक कंक्लूजन में पहुंची। And what was the conclusion? Conclusion was that she was never going to stand by and say nothing again. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. अब उसने क्या डिसीज़न लिया कि वो किसी को भी अब टीज़ नहीं करेंगे, चाहे उनका फ़नी नेम हो या कोई और स्ट्रेंज नेम हो, और शी वुड स्पीक अगेंस्ट इट। इफ़ एनीबडी विल डू इट, शी वुड टेक स्टैंड अगेंस्ट इट, इवन शी हैड टू लूज द Peggy's फ्रेंडशिप ऑल्सो, शी वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अब क्योंकि वो चीज़ें वांडा के साथ तो सही नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो उसका ये था कि मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। Here are some questions, 3 questions are there. You just read it carefully and listen it carefully and then solve these questions and write the answer in the comment section. Now we'll continue the chapter. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. सैटरडे को मैडी जो है दोपहर का समय था, पैगी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और उन्होंने एक लेटर लिखा वंडा पेट्रॉन्स्की को, और वो एक फ्रेंडली लेटर था कॉन्टेस्ट के बारे में और बताने के लिए कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। उन्होंने ये भी पूछा कि उसे वो जगह पसंद आई जहाँ पर रह रहे हैं या फिर उन नई टीचर पसंद आई। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी, और कहीं ना कहीं बाय राइटिंग दैट दे वर फीलिंग सॉरी, बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन उन्होंने एंड किया एक फ्रेंडली लेटर लिख करके, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि किसी भी अच्छे फ्रेंड को लिखते हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिग्नेचर किए और वहाँ पर लव के लिए, जैसे एक्स फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उन्होंने इसे बॉगिन्स हाइट पर मेल कर दिया और लिख दिया उसके आगे कि प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। बहुत दिन गुजर गए लेकिन जो आंसर नहीं आया, तो समवेयर दे हैव अ होप दैट मे बी वांडा हैड गॉट दैट लेटर समहाउ। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer, और शायद वो इतना गुस्सा थी कि she did not want to give answer of that letter. Week went and but still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. Peggy सब कुछ भूल कर अपने सब चीज़ों में लग गई थी, उसने सब कुछ भुला दिया था जो भी कुछ हुआ था। जो मैडी थी वो रात को स्पीचेस बनाती थी वांडा के लिए कि कैसे उसको सॉरी बोले, कैसे उसके लिए अच्छा करे, डिफेंडिंग हर, और ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। वो सोचती थी कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी, अगर कोई वांडा को टीज़ करेगा तो मैं उसे ये लाइन कह करके बचाऊँगी, ये लाइन कह के बचाऊँगी। तो शी मेक द स्पीचेस फॉर दैट एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी did before answering, Maddie would cry out stop, और इससे पहले कि वांडा कुछ बोलेगी तो मैं वो सबको स्टॉप कर दूँगी। देन एवरीबडी वुड फील अशेम द वे शी यूज टू फील, और तब सबको बुरा लगेगा जैसे उसको बुरा लगता था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. क्रिसमस टाइम था, वेयर देयर वाज अ डेकोरेशन ऑफ क्रिसमस, और जो लास्ट डे था स्कूल का हॉलीडेज से पहले, टीचर ने एक लेटर दिखाया जो उसे उसी मॉर्निंग को मिला था टीचर को। यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट,
तो अब टीचर ने बोला कि क्या आप सबको याद है वंडा पेट्रॉन्स की गिफ्टेड चाइल्ड, वो बच्चा जिसने कि ये कंपटीशन जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कहाँ रहती है। शी वॉज़ हैप्पी देयर बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं उसे मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मुझे उसका लेटर तुम्हें बताना है। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन intently. जो क्लास में स्टूडेंट थे, when they listened this information, they sat quietly and interestingly to listen the letter. Dear Miss Mason, how are you in room number 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones, all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have do the drawings of the green dress with the red trimming, and her friends Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. तो उसने लिखा कि जो है पूरी कि रूम नंबर 13 कैसा है, सब लोग कैसे हैं, आप कैसे हो, और गर्ल्स को बोल दीजिएगा कि वो 100 की ड्रेसेस रख सकती है, जितनी भी 100 ड्रेसेस मैंने बनाई थी, क्योंकि न्यू हाउस में मेरे पास वो 100 ड्रेसेस हैं मेरी क्लोजेट में। और मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग ले जो उसमें रेड ट्रिम हो रखा है, और जो उसकी फ्रेंड है वो ब्लू वन ले ले। और क्रिसमस के लिए मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ, और जो न्यू टीचर है वो आपके जितनी अच्छी शायद नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वंडा पेट्रॉन्स्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had risen holy in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. अब जो है जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ड्राइंग को बहुत अच्छे से पकड़ा, और पूरे जो घर थे वो कवर थे, विंडोज़ पूरी कवर थी, और सब कहीं ग्रॉसरी स्टोर में बहुत सारे क्रिसमस ट्री जो है डेकोरेटेड थे विंडोज़ में, और कैंडी पेपरमेंट वहाँ पर स्टिक थे, और जो कॉपियाज़ हैं डेकोरेटिव कंटेनर्स जो होते हैं जिनमें कि फ्लावर्स और फ्रूट्स भरे रहते हैं, वो शाइनी ट्रांसपेरेंट वो स्ट्रंग। और जो एयर थी सब में कहीं ना कहीं क्रिसमस की स्मेल थी, मतलब क्रिसमस के अकॉर्डिंग सब कुछ डेकोरेटेड था। एवरीवेयर वर डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। बॉय सेड पैगी, दिस शोज दैट शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीवन इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ऑल दैट्स दैट। अब पैगी ने बोला बॉय मीन्स कि जो ऐसे चिल्लाते हुए बोला उसने, because she was very happy कि now if she has sent the letter it means she is not angry with us, she was happy where she is, और everything is all right there. I hope so, Maddie saidly. Maddie ने बहुत बिना खुशी को दिखाते हुए बोला कि हाँ ठीक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again and could not ever really make things right between them. क्योंकि कहीं ना कहीं उसको था कि वो उस बेचारी ना बोलने वाली लड़की से कुछ कह नहीं पाएगी, और कभी भी चीज़ों को उसके साथ जो इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पेंट हर ड्राइंग ओवर अ torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब वो जब घर गई तो उसने ड्राइंग को जो है एक टॉर्न प्लेस पर जो है पिंक फ्लावर वॉलपेपर पर उसने बेडरूम के चिपका दिया। जो शैबी रूम था एकदम से उसमें जान आ गई उस कलर से। तो मैडी बैठ गई बेड के पास एंड शी वॉज लुकिंग एट द ड्राइंग, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि शी हैज़ नॉट कॉपरेट विद हर, शी हैज़ नॉट टेकन अ स्टैंड फॉर हर, बट शी वॉज नाइस टू हर, लेकिन वो उसके लिए नाइस थी, अच्छा सोच रही थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. तब उसने आंसू पोंछे आंखों से अपनी, और फटाफट से अपनी आंखें रब की, और एकदम से
कुछ देखा। क्या देखा? जो कलर थे ड्रेस में वो इतने विविड थे, इतने अच्छे थे कि उसने फेस को नोटिस ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं कर पाई। वो जो फेस था उस ड्रेस में, शी इट वॉज लुकिंग लाइक हर, दैट फेस वॉज मैचिंग विद हर, मैडी के साथ मैच हो रहा था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, वो उसके मुंह जैसा था। वाई इट रियली लुक हर लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने उसके लिए ही ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली शी रैन ओवर टू पैगी, और एग्जैक्टली ही उसने पैगी के लिए किया था। पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, पैगी मुझे अपनी तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। जहाँ पर वो ड्राइंग रखी थी, मैडी केयरफुली रेज्ड, मैडी ने बहुत ध्यान से उठाया। लुक शी ड्रू यू, उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम, एंड शी हैड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जो इस ड्राइंग का जो फेस और पिक्चर था वो बिल्कुल पैगी के जैसा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो हमें सच में पसंद करती थी। एनीवे यस शी मस्ट हैव, एग्री मैडी, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure 100 of them all line it up. और तब उसे वो सब चीज़ें याद आती, आंखों में उसकी आंसू आ रहे थे मैगी और पैडी की, कि उन्हें वो टाइम याद आ रहा था जब वो उससे स्कूल यार्ड में पूछते थे ड्रेसेस के बारे में, और वो कितना जो है श्योरली जवाब देती थी कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल, कि पूरी की पूरी 100 हैं और सबकी सब लाइनेड अप है। हियर आर द अगेन क्वेश्चंस एंड थिंक देयर द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, सो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी केयरफुली यू कैन डू देम, and I'll send you a PDF also. So please be stick to the channel, be like the channel and subscribe the channel for new updates. And if you want the summary, then please do comment in the comment section, then I'll provide you the summary also. So stay safe.